Hare Krishna. Chapter 3 from verse number 38 we will start. सो यहाँ पे भगवान कृष्ण कर्मयोग का सिद्धांत बताते बताते अगर ये कर्मयोग कोई पालन नहीं करता तो बंधन में फंसता है, एंड वन हु इज़ गोइंग टू फॉलो इट he will gradually get liberated from this. अर्जुन का प्रश्न उठता है कि ऐसा क्या है, मतलब थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा टॉपिक अभी, कि व्हाट इज़ देयर विच इज़ फोर्सिंग मी टू डू ऑल्दो दैट इज़ सिनफुल. पता है पाप है पर फिर भी मुझे करने के लिए प्रवृत्त करता है. ऐसी क्या ऊर्जा है, ऐसी क्या शक्ति है वो, जो कि बहुत कठिन है उसको लांग पाना. तो भगवान कहते हैं काम ऐशा क्रोध ऐशा, जो कि रजोगुण से आता है. महाशना ऑल डिवोरिंग, सबसे बड़ा पापी है और सबसे बड़ा शत्रु है. तो लस्ट के बारे में बता रहे भगवान कृष्ण. कोई भी योग पद्धति लेंगे, उस योग पद्धति के लिए बाधा बनती है लस्ट, काम. तो काम से कैसे विजय प्राप्त करना है भगवान कृष्ण इस अध्याय में बता रहे हैं. हियर वी गो, वर्स नंबर 38. धूमेनाव्रियते वह्निर् यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदम आवृतम तथा तेनेदम आवृतम. As fire is covered by smoke, as a mirror is covered by dust, or as the embryo is covered by the womb, the living entity is similarly covered by different degrees of their lust. So there are different degrees of lust which is covering the consciousness of living entity, and that covering is lust. Purport by Srila Prabhupada, there are 3 degrees of covering of the living entity by his pure consciousness is, by which his pure consciousness is obscured. Yani he is not able to understand his, or not able to discover his pure consciousness due to lust. So this covering is but lust under different manifestation, like smoke in the fire, dust on the mirror, and the womb about the embryo. So the covering is more stronger when the example is given of a womb. Obviously the child will not be able to see until unless he is coming out of the womb. And the mirror, the covering on the mirror of the dust is also little stronger. We have to wipe out the mirror, then only we will be able to see our reflection. And the first is fire, that is covered by smoke. Okay, you have to remove the smoke from the fire by blowing or by moving your hands. So that is less stronger than the dust on the mirror. So these are different degrees of lust. Through examples they are making you understand. So when lust is compared to smoke, it is understood that the fire of the living spark can be little perceived. In other words, when the living entity exhibits his Krishna consciousness slightly, he may be likened to the fire covered by smoke. Although fire is necessary where there is smoke, there is no overt manifestation of fire in the early stage. This stage is like the beginning of Krishna consciousness. तो फायर का जो एग्जाम्पल है, स्मोक एंड फायर, इज समवन इज शोइंग लिटिल कृष्ण कॉन्शियसनेस स्पेशली इन द बिगिनिंग. So that example is that yes, he will later on, the fire will get manifest. Right now is not getting manifested fully, but later on it will get manifest. Just little bit patience is required.
So human being who is inclined toward Krishna consciousness, that is example is given that the lust is minimum, then the lust covering is minimum. Then the second example, the dust on the mirror, refers to a cleansing process of the mirror of the mind by so many spiritual methods. Okay, तो क्लींसिंग प्रोसेस मतलब अभी तक कुछ रेवलेशन नहीं हो पा रहा है, कॉन्शियसनेस अपलिफ्ट नहीं हो पा रहा है, कृष्ण के प्रति अभी तक इंक्लाइन नहीं हुआ है, बट बाय चैंटिंग, बाय एक्सेप्टिंग द मेथड ऑफ चैंटिंग और हियरिंग अबाउट लॉर्ड, वन कैन रिवील हिज कॉन्शियसनेस. तो द बेस्ट प्रोसेस इज टू चैंट द होली नेम्स ऑफ लॉर्ड. तो ये सेकेंड एग्जाम्पल इसके लिए है. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट द पर्सन इज लिटिल इंक्लाइन टू कृष्ण कॉन्शियसनेस ऑलरेडी. The second example, he may not be very inclined, but he will accept some process to purify himself, to purify from the contamination, and then he will get inclined later on. And the third is embryo covered by the womb is an analogy illustrating a helpless position for the child in the womb is so helpless that he cannot even move. This stage of living condition can be compared to that of the trees. The trees are also living entities, but they have been put in such a condition of life by such a great exhibition of lust that they are almost void of all consciousness. The covered mirror is compared to the birds and beast, and the smoke covered fire is compared to the human beings. In the form of human being, the living entity may revive a little Krishna consciousness, and if it makes further development, the fire of spiritual life can be kindled in the human form of life. By carefully handling of the smoke is in the fire can be made to blaze. Therefore, the human form of life is a chance for the living entity to escape the entanglement of material existence. In the human form of life, one can conquer the enemy lust by cultivation of Krishna consciousness under able guidance. तो पहला एग्जाम्पल आप इसको रिलेट कर सकते ह्यूमन बींग से, दैट इज स्मोक फायर, एंड द सेकेंड एग्जाम्पल यू कैन रिलेट टू द कॉन्शियसनेस मोर कवर्ड इन बीस्ट लाइफ एंड बर्ड्स लाइफ, दैट इज डस्ट एंड मिरर, एंड द थर्ड एग्जाम्पल कैन बी लेट टू ट्रीज. ओके, दे आर हेल्पलेस नो मैटर वॉट यू डू. ओके, so we are not going to hear any such acharya commentaries, so let's move on next verse. Verse number 39. Avritam jnanametena jnanino nityavairina कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च. Dushpurena is never to be satisfied. Analena is fire. So thus a wise living entity's pure consciousness becomes covered by his eternal enemy lust. Eternal enemy in the form of lust, which is never satisfied and which burns like fire. तो लिविंग एंटिटी आत्मा तो शुद्ध है, पर उसकी चेतना में जो बाधा आ रहा है, उसका अस्तित्व वो समझ नहीं पा रहा है. वो किसकी वजह से? काम भावना की वजह से. काम रूप में जो शत्रु है, उसका नित्य शत्रु है, नित्य वैरी है, उसकी वजह से कभी भी न संतुष्ट होने वाला और सदैव जला देने वाला, व्यक्ति को दावाग्नि में डालने वाला, ऐसा ये काम शत्रु है. सो purport by Srila Prabhupada, it is said in the Manusmriti that lust cannot be satisfied by any amount of sense enjoyment. Just as fire is never extinguished by a constant supply of fuel. In the material world, the center of all activities is sex, and thus this material world is called Maithunya Agara, or the shackles of sex life. In the ordinary prison house, criminals are kept within bars. Similarly, criminals who are disobedient to the laws of the Lord are shackled by sex life. Advancement of material civilization on the basis of sense gratification means increasing the duration of the material existence of a living entity. Therefore, this lust is the symbol of ignorance by which the living entity is kept within the material world.
which one enjoys sense gratification, it may be that there is some feeling of happiness, but actually the so-called material happiness, feeling of happiness, is the ultimate enemy of the sense enjoyer. So मैथुनी आगार कहते हैं, आगार यानी जेल, मैथुनी is sex life. So everyone is shackled by sex life in this. So enjoying sense gratification is delaying the process of going back to Godhead. तो अगर कोई व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करने की लालसा रखता है, बनाए रखता है, इसका मतलब क्लियर है, ही इज नॉट सीरियस. वह संसारी में ही, संसार के चक्कर में फंसना चाहता है जीवन मृत्यु के. और सबसे पहले होता है काम भावनाओं को सहन करना, उसे कंट्रोल करना, ब्रह्मचर्य पालन करने. सबसे बड़ी विजय अगर जीव कर पाता है तो ये विजय प्राप्त होती है उसे. तो इसलिए काम भावना, दैट इज अ काम इज द इटर्नल एनिमी which supplies constant fuel. Enjoying sense gratification is supplying fuel. जैसे अग्नि में तेल डालने के समान है इंद्रिय तृप्ति करना. तो काम भावना कम नहीं होगी बल्कि फिर से बढ़ जाएगी. जैसे तथाकथित जो कई शुष्क तत्ववादी लोग, जैसे ओशो जैसे, वो लोग कहते हैं कि जितनी एन्जॉयमेंट करना है, जितना इंद्रिय तृप्ति करना है कर लीजिए, जिससे व्यक्ति उब जाएगा. शायद ऐसे एक्सेप्शनल केस में हो सकता है, जिस प्रकार मान लीजिए कोई अग्नि में अगर छोटी सी अग्नि हो तो उस पर 1 टन अगर तेल, एक लीटर ज़्यादा, कई गुना लीटर अगर तेल इसके ऊपर जोर से फेंका जाए तो अग्नि वो बुझ सकती है, अगर अग्नि छोटी हो. पर अग्नि अगर बहुत ही विशाल है, क्योंकि काम भावना जो है व्यक्ति की कई जन्मों से है, और व्यक्ति अगर उसमें संतुष्ट करना चाहता तो ये संभव नहीं होगा. जितना वो संतुष्ट करने जाएगा उतना भड़केगा. तो ये जो फिलॉसफी विल नॉट वर्क. द ओशोस फिलॉसफी इज अ फेलियर, बिकॉज उन लोग को लगता है कि हम जितने ज़्यादा काम भावनाओं को पूर्ति करेंगे उतना ही व्यक्ति विरक्त हो जाएगा. बल्कि ऐसा नहीं है. भले वो एक व्यक्ति से विरक्त हो जाए पर काम भावना से विरक्ति नहीं होती है. हो सकता है अति परिचय होने की वजह से, कोई शरीर का संपर्क में आने की वजह से उस शरीर से व्यक्ति उब जाए, बट ही विल लाइक टू हैव एसोसिएशन विद अनदर बॉडी देन, बट ही विल नॉट बी एबल टू गेट डिटैच फ्रॉम सेक्स लाइफ. सो दैट इज अ रॉन्ग वे. इसलिए मनुस्मृति में मनु क्लियरली कहते हैं कि इंद्रिय तृप्ति करना यानी अग्नि में तेल डालने के समान. श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर is saying that न जातु कामः कामम उपभोगेन संयति हविष कृष्ण वर्तमेव भूय एव अभिवर्धते. दिस इज श्रीमद् भागवतम कोटेशन 9:19-14. As supplying butter to a fire does not diminish the fire but instead increases it more and more, the endeavor to diminish the fire, but instead the endeavor to stop lusty desires by continual enjoyment can never be successful. यही दोहरा रहा है जैसे मनुस्मृति में जो कहते हैं. Sridhar Swami says that to the person situated in Vedic wisdom who understands that they will receive a subsequent reaction, then kama is a cause of pain even while trying to enjoy. अगर कामनाओं की पूर्ति बिना नियम को पालन करते हुए व्यक्ति करता है तो उसके कर्मफल भी उसको भुगतने पड़ते हैं. विवाह के नियम के अनुसार व्यक्ति को जब पुत्र उत्पन्न करना है तभी वह शारीरिक संबंध स्थापित कर सकता है, अनिवार्य अन्यथा नहीं. अर्थात वह अगर विवाह के बाहर अगर अपने आप को तृप्त करना, अपने शरीर के आवश्यकताओं को पूर्ण करने का प्रयास करेगा तो फिर उसको कर्म बंधन से वो लिप्त हो जाएगा. सो देयरफॉर वो विकर्मी बन जाएगा. सो देयरफॉर कामा इज अंडरस्टूड टू बी एन इटर्नल एनिमी. Moreover, even if supplied with delightful sense objects of enjoyment, it is never enough because
kama is insatiable, and when it is not satisfied, kama turns into krodha or anger, and that leads to grief and affliction, just like a forest fire burning everything in its path. So from these statements, its eternal inimical nature towards all beings has been declared. जैसे दावाग्नि पूरे वन को भस्म कर देती है, वैसे ही काम पूरे जीवन को भस्म कर सकता है. इसलिए इसको बढ़ावा देना यानी मृत्यु को न्योता देना. Madhavacharya says that the word analena means like a fire, which denotes the burning fire of kama, which is never satisfied and insatiable. It is said that kama covers the atma as smoke covers fire, as dust prevents one from seeing a reflection in the mirror. This kama prevents one from perceiving their atma, and as the womb imprisons the embryo, it is a kama which keeps a person imprisoned in the material existence. तो माधवाचार्य तीनों उदाहरण को लेते हुए एक्सप्लेन करते हैं, काम व्यक्ति को उसके चेतना को ढक देता है, जिस प्रकार अग्नि को धुआं ढक देती है, और व्यक्ति जैसे आत्मा को कवर कर देता है, जिस प्रकार काम भावना जो है आत्मा के अस्तित्व को कवर कर देता है, जिस प्रकार अग्नि को धुआं कवर कर देता है, और जिस प्रकार जो समझने की शक्ति है व्यक्ति के मनोबुद्धि को कवर कर देता है, आध्यात्मिक ज्ञान उसको समझ में नहीं आता है काम की वजह से, जिस प्रकार दर्पण को धूल कवर कर देता है, और जिस प्रकार गर्भ में जो शिशु है उसको कवर किया गया है गर्भ से, उसी प्रकार व्यक्ति जैसे वो बंदी बना चुका है, उसी प्रकार हम संसार के बंदी बन जाते हैं काम की वजह से, संसार में बंदी बन जाते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि से. So this is Lord Krishna's meaning. Even the position of Indra in the heavenly realm is born of this kama, that is to be the king of all the celestials. Yet even while trying to achieve the position of Indra, the position of Brahma is sought, because kama is never satisfied, and it is more exalted to be the ruler of the material worlds than the king of the celestial, and so forth and so on. चाहे वो ब्रह्मा हो चाहे वो इंद्र हो, काम ने सबको ग्रस्त कर लिया है. जैसे भागवत कहता है तीसरे स्कंद में, तत्सृष्ट सृष्ट सृष्टेषु को अन्व खंडित धी पुमान ऋषिम नारायण ऋते योषितमय्येव मायया. ऋषि नारायण छोड़कर, नारायण ऋषि जो कि विष्णु के ही अवतार, नारायण ऋषि छोड़कर इस संसार के सभी जीव काम से ग्रस्त होते हैं. So that's what the analogy given, and also यहाँ पे कैसे ज्ञानियों के भी कि चित्त को हर लेता है ये काम, ज्ञानिनो नित्य वैरिण, और एक काम रूपी जो शत्रु है वो पूरी तरह जीवन को तहस नहस कर देता है, पूरी तरह विध्वंस कर देता है, जिस प्रकार अग्नि पूरे वन को विध्वंस कर देती है. तो ये यहाँ पे कह रहे हैं. मूविंग टुवर्ड्स 40th वर्स. इंद्रियाणि मनो बुद्धिर अस्याधिष्ठानम् उच्यते एतैर्विमोहयति एष ज्ञानमावृत्य देहिनाम्. The senses, the mind and the intelligence are the sitting places of this lust. Through them lust covers the real knowledge of the living entity and bewilders him. तो इसमें कोई संदेह नहीं, काम जो है व्यक्ति के ज्ञान को हर लेता है, ज्ञानियों के चित्त को हर लेता है, ज्ञानियों के ज्ञान को ढक देता है और पूरी तरह उनको दिग्भ्रमित कर देता है. तो ऐसा जो शत्रु है, शत्रु का वास किधर है? कोई पूछ सकता है ना, ये शत्रु कहाँ रहता है? तो शत्रु कहाँ रहता है? इंद्रिय, हमारे इंद्रियों में, हमारे मन में और हमारे बुद्धि में. भले ही बहुत ज्ञान है आपके पास, अगर पर शरीर का संपर्क दूसरे शरीर से होता है, खास करके अपोजिट जेंडर, तो काम की उत्पत्ति हो सकती है, क्योंकि शरीर में ही काम है.
मन में विचार आ सकता है क्योंकि मन में काम है, बुद्धि भी दिग्भ्रमित हो सकती है क्योंकि बुद्धि में काम है. सो लस्ट स्टेज इन सेंसेस, माइंड, इंटेलिजेंस. सो वी हैव टू एंगेज द सेंसेस, माइंड एंड इंटेलिजेंस इन कृष्णा सर्विस. यही एक उपाय है. Purport by Srila Prabhupada, the enemy has captured different strategic positions in the body. Okay, of the conditioned soul, and therefore Lord Krishna is giving hints of those places, so that one who wants to conquer the enemy may know where he can be found. Mind is center of all the activities of the senses, and thus when we hear about sense objects, the mind generally becomes a reservoir of all ideas of sense gratification. So mind is the center of all activities of the senses. Mind, इंद्रिया जो है वो सभी इंद्रियों में क्या है, all the senses में he is a king, he is a controller, and thus when we hear about sense objects, the mind generally becomes a reservoir of all ideas of sense gratification. जैसे हम सुनते हैं या फिर देखते हैं तो मन क्या होता है, मन काम भावना को पकड़ सकता है, अलग अलग विचार लाता है, अलग अलग इंद्रिय तृप्ति करने के तरीके ढूंढता है, and as a result the mind and the senses becomes the repositories of lust. So mind and senses becomes the repositories of lust. So where things are stored, रिपोजिटरी किसे कहते हैं, जो चीज़ें जहाँ पे स्टोर की जाती है, स्टोर हाउस जैसे, तो लस्ट का स्टोर हाउस है माइंड एंड सेंसेस. सो नेक्स्ट द इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट बिकम द कैपिटल ऑफ सच लस्टफुल प्रोपेंसिटीज. तभी व्यक्ति बुद्धि लगाने लगता है फिर कैसे मैं अपनी कामनाओं को पूर्ति करूँ. सो इंटेलिजेंस इज द इमीडिएट नेक्स्ट डोर नेबर ऑफ द स्पिरिचुअल सोल, स्पिरिट सोल. स्पिरिट सोल और इंटेलिजेंस बहुत क्लोज है. इंद्रियाणि पराणि और इंद्रियभ्य परमन मनस्सु परा बुद्धि यो बुद्धि परस्तस्तु सह. सोल के पास सबसे है इंटेलिजेंस, बुद्धि, फिर उसके बाद है मन, फिर उसके बाद है इंद्रियां, फिर ये ग्रॉस शरीर. तो इंटेलिजेंस इज द इमीडिएट नेक्स्ट डोर नेबर ऑफ द स्पिरिट सोल. लस्टी इंटेलिजेंस इन्फ्लुएंसेस द स्पिरिट सोल टू एक्वायर द फॉल्स ईगो and identify itself with matter and thus with the mind and senses. The spirit soul becomes addicted to enjoying the material senses and mistakes this as true happiness. This false identification of the spirit soul is very nicely explained in the Srimad Bhagavatam. यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातुके स्वधि कलत्रादिषु भौम इज्जतिः यत्तीर्थ बुद्धिः सलिले न कर्हिचित् जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखरः. A human being who identifies this body made of three elements with his self, who considers their byproducts of the body to be his kinsmen, who considers the land of birth worshipable, land of birth as worshipable, and who goes to the place of pilgrimage simply to take a bath rather than meet men of transcendental knowledge, there is to be considered like an ass or a cow. सैव गोखर, ऐसे व्यक्ति को गधा, गाय कहते हैं, जो अपने धरती को अपनी धरती समझता है, जिस धरती में जन्म लेता है समझता है कि मेरी धरती है, जो अपने लोगों को अपने शरीर से संबंध से जुड़े हुए लोगों को अपने समझता है. जो व्यक्ति तीर्थ स्थान में भी जाता है अपने शरीर को भी आत्मा समझ बैठता है और तीर्थ स्थान में जाता है तो सिर्फ स्नान करने के लिए, पुण्य कमाने के लिए, दैट्स इट. ऐसे व्यक्ति को गधा और गाय कहते हैं. काम से ग्रस्त ऐसे व्यक्ति शरीर को ही आत्मा समझ बैठे हैं क्योंकि काम का प्रभाव इतना है, काम का प्रभाव बुद्धि पर, मन पर, इंद्रियों पर इतनी बुरी तरह है कि व्यक्ति अस्तित्व आत्मा होने के बावजूद भी व्यक्ति अपने आप को शरीर समझता है. सो इंटेलिजेंस, बुद्धि जो है, पहले व्यक्ति को बुद्धि प्रयोग करना अच्छी तरह से. अगर बुद्धि ही कामग्रस्त हो जाती है तो व्यक्ति जो है मन और इंद्रियों को लेकर अपने जीवन को नष्ट करता है. श्रीधर स्वामी says that as desires arise from contact with sense objects by seeing, hearing, touching, etc., the mind is agitated and a determined effort to enjoy arises, and lust manifests itself from within the mind
completely overpowering the intellect and discriminatory faculties, and a person is controlled and deluded, forced to be a slave of their senses. तो व्यक्ति अपने डिस्क्रिमिनेटिंग एबिलिटी को भूल जाता है कि क्या सही है क्या गलत है. कामांध नैव पश्यति, जन्मांध नैव पश्यति. जिस व्यक्ति जन्म से अंधा व्यक्ति देख नहीं पाता, उसी प्रकार काम से अंधा व्यक्ति भी देख नहीं पाता. जब काम भावना जागृत होते हैं, उसको ना शर्म है ना कुछ है, ना नियमों को देखना चाहता है, न शास्त्र के सिद्धांत को मानता है, न शारीरिक आत्मा के स्तर को समझता है, न कई वरिष्ठ लोगों के आदेश को मानता है. जैसे आप देखते हैं कोई लड़की जब लड़के से विवाह करने, भले लड़का कैसा भी हो, कभी कभी माता पिता जब विरोध करते हैं, अब बुरी तरह विरोध करते हैं, तो माता पिताओं के भी जो सही आदेश है, भले अगर लड़का एकदम ही ठीक नहीं है, ना वो लड़की को देख सकता अच्छी तरह से, और माता पिता भली बात ही जानते होंगे जब, और वो समझा रहे लड़के, फिर भी वो समझ नहीं पाती और उनके विरोध में जाके विवाह कर लेते. तो काम भावना की वजह से इतना प्रबल निर्णय ले लेते हैं बिना सोचे समझे, क्योंकि उस समय पे उनकी बुद्धि को नष्ट कर देता है ये काम. दैट्स द पावर ऑफ लस्ट. ओके, अब कई बार आप देखते हैं, कभी कभी देखते हैं गलत व्यक्ति को चुन लेते हैं कभी कभी, या फिर व्यक्ति धन के मद में आकर अपने लोगों का भी खून कर देता है. तो ये क्यों है? काम भावना इतनी प्रबल है इसके वजह से. वी हैव सीन सो मेनी दैट अ वाइफ इज किलिंग हर ओन हस्बैंड just to enjoy with her boyfriend, or a man is killing his own wife or children just to enjoy relation with another woman. So these things we have already heard many a times. The lust creates such situations. Madhvacharya says that the senses becoming excited agitates the mind, and the mind becomes excited, envelops the intellect with this kama. तो इंद्रियों को जब इंद्रियां जब विचलित हो जाते हैं, संयम के बाहर हो जाते हैं, तब वो मन को ट्रिगर करते हैं, माइंड को ट्रिगर करते हैं. और जब इफ माइंड बिकम्स लस्टी, देन व्हाट हैपेंस, इट विल कवर योर इंटेलेक्ट, आपकी बुद्धि को हर लेता है. तो इसलिए पहले क्या करना है, भगवान कृष्ण भगवत गीता में अगले श्लोक में बताएंगे सर्वप्रथम व्यक्ति को क्या करना चाहिए काम से बचने के लिए. Next verse, 41st. तस्मात् त्वमिन्द्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ, पापमानं प्रजाहीयेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्. Therefore, O Arjuna, best of the Bharatas, in the very beginning curb this great symbol of sin, that is lust, by regulating the senses, and slay this destroyer of knowledge and self-realization. तो सर्वप्रथम व्यक्ति को क्या करना है, भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं कि पहले इंद्रियों को दमन करना है, नियम लगाना है उस पर. So the Lord advised Arjuna to regulate the senses from the very beginning so that he could curb the greatest sinful enemy, lust, which destroys the urge for self-realization and specific knowledge of the self. Jnana refers to knowledge of self as distinguished from non-self, or in other words, knowledge that the spirit soul is not the body. Vijnana refers to specific knowledge of the spirit soul's constitutional position and its relationship to the supreme soul. तो यहाँ पे ज्ञान और विज्ञान का डेफिनेशन बता रहे हैं. ज्ञान पथ पर ज्ञान को अर्जित करने के लिए काम बाधा होता है. कामनाओं की वजह से, काम की वजह से व्यक्ति ज्ञान को अर्जित नहीं कर सकता. इसलिए गुरुकुल में भी व्यक्ति जब रहता है तो उसको ब्रह्मचर्य धारण करना होता है, काम की कभी पूर्ति नहीं करनी चाहिए. One who is sexually inclined, he will not be able to become self-realized. He will not be able to take education properly. And this is the flaw right now we see in today's youth and today's children who are sexually inclined, who are attached to pornography. It's very difficult for them to focus on the studies and to become self-realized also, and what to talk about spiritual life then.
तो इसलिए व्यक्ति अपने इंटेलेक्ट को खो देता है। एंड ज्ञान से क्या है, व्यक्ति को जानकारी मिलती है कि वो शरीर नहीं, वो आत्मा है। और विज्ञान से व्यक्ति को स्पेसिफिक जानकारी मिलती है जिससे वो समझता है कि मेरा अस्तित्व क्या है, मेरे भगवान से संबंध क्या है, ये समझता है। सो इट इज वैसा वो कार्य करता है, भगवान की सेवा करता है। सो इट इज एक्सप्लेन दस इन श्रीमद् भागवतम, ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम स रहस्यंतदंगम च गृहाण गदितम मया। The knowledge of the self and the supreme self is very confidential and mysterious. But such knowledge and specific realization can be understood if explained with their various aspects by the Lord himself. भगवान समझाएंगे तो ही समझ में आएगा, वैसे तो बहुत कठिन है। आत्मा और परमात्मा के बारे में जो ज्ञान है वो बहुत ही गुह्य है, बहुत कठिन है समझने के लिए। भगवान समझाएंगे तभी समझ सकते हैं। सो भगवद गीता गिव्स दैट जनरल एंड स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ द सेल्फ। लिविंग एंटिटीज आर पार्ट्स एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड, ममय वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन, एंड देयरफॉर दे आर सिंपली मेंट टू सर्व द लॉर्ड। ओके, मत सेवनाम जना, भगवान की ही सेवा करनी चाहिए। सो दिस कॉन्शियसनेस कॉल्ड कृष्ण कॉन्शियसनेस। सो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ लाइफ one has to learn this Krishna consciousness, and thereby one may become fully Krishna conscious and act accordingly. So very beginning से कौमार आचरित प्रज्ञ धर्मान भागवतानि, 5 साल की आयु से व्यक्ति को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए एक्चुअली। ओके, when you're trained in the beginning only, then you will be able to know how to deal with lust. तो ट्रेनिंग ज़रूरी है। So lust is only the perverted reflection of the love of God, which is natural for every living entity. तो सभी में लस्ट है क्योंकि सभी में भगवान के लिए प्रेम है। उस प्रेम का रूपांतर काम में हो चुका है इस संसार में आने के बाद। But if one is educated in Krishna consciousness from the very beginning, the natural love of God cannot deteriorate into lust. When love of God deteriorates into lust, it is very difficult to return to the normal condition. तो व्यक्ति को जब आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है तभी वह इस ऊर्जा शक्ति का प्रयोग भगवान कृष्ण के प्रेम करने में कर सकता है, ना कि कामनाओं की पूर्ति करने में करेगा। पर जब यह भगवत प्रेम जो है काम में रूपांतर हो जाता है तो उसको फिर से व्यक्ति को अपने अस्तित्व को समझना बहुत ही कठिन हो जाता है। Nonetheless, Krishna consciousness is so powerful that even a late beginner can become a lover of God by following the regulator principles of devotional service. So from any stage of life or from the time of understanding its urgency, one can begin regulating the senses in Krishna consciousness, devotional service of the Lord, and turn the lust into love of Godhead, the highest perfectional stage of human life. तो जब पता चला तभी व्यक्ति को स्वीकारना चाहिए कृष्ण भावनामृत को, और इस काम भावना को कंट्रोल करते हुए व्यक्ति को भगवान के प्रेम में इसका रूपांतर करना है। जब समझे तब, जब इसके हम अर्जेंसी समझे, जब हम सीरियस इसको समझे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कृष्ण भावनामृत, तब व्यक्ति को स्वीकारना चाहिए। जब व्यक्ति को ये लगे कि नहीं ये मेरे लिए बहुत हितकारी पथ है, तभी इसको स्वीकारना चाहिए। तो भले वो लेट हो या फिर जल्दी हो, तभी इसको तुरंत स्वीकारना चाहिए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर says that the senses may be difficult to control, but they are easier to conquer than the other items. यानी मन को तो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, बुद्धि को भी बहुत डिफिकल्ट है, तो क्या कर सकते, कम से कम इंद्रियों को तो दमन कर लो। एटलीस्ट डोंट ब्रेक द प्रिंसिपल्स ऑन द बॉडीली लेवल। वन मे फील लाइक ग्रेटिफाइंग हिज सेंसेस। ओके, कामनाओं की पूर्ति करने की इच्छा तो हो सकती है, पर व्यक्ति को क्या करना है, एटलीस्ट शरीर स्तर पे इसको भंग नहीं करना है। सो देयरफॉर फर्स्ट द सेंसेस शुड बी conquered. Therefore you should control the senses. Though the uncontrollable mind wants to steal others' wives or his properties, one should not engage the senses by carefully considering the situation of the functioning of the senses, such as eyes, ears, hands or feet. मन में आ सकता है कि मैं अनैतिक संबंध करूं, मन में आ सकता है कि मैं नॉनवेज खाऊं, मन में आ सकता है कि मैं कुछ अनाप शनाप कार्य करूं, पर शरीर स्तर पे उसको नहीं करना है। अच्छी तरह से समझ के कि कैसे मन खेल खेल रहा है,
हम इसको सहन करना चाहिए. सो किल दिस फेरोशियस लस्ट पाप मानम. दिस मीन्स दैट बाय रेस्ट्रिक्टिंग द सेंसेस आफ्टर सम टाइम द माइंड विल बिकम फ्रीड ऑफ लस्ट. पहले इंद्रियों को दमन करने से, इंद्रियों को अगर हम रोक लेंगे ना, पर कैसे रोकेंगे? खाली बैठ के नहीं. इफ़ यू आर सिटिंग आइडल, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट ईजी टू कंट्रोल लस्ट. यू हैव टू एंगेज द सेंसेस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस. हमारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगानी पड़ेगी. आँखों को भगवान के विग्रह देखने के लिए, भगवान की तीर्थस्थान, भगवान के मंदिर देखने के लिए, भगवान का स्वरूप देखने के लिए, मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो. कानों को भगवान की हरि कथा, भगवान का हरि नाम सुनने के लिए लगाना पड़ेगा. तभी जाके पहले आँख और कान तो लग जाएंगे. जिह्वा को भगवान कृष्ण के प्रसाद ग्रहण करने में लगाना चाहिए. एटलीस्ट दिस शुड बी एंगेज इन दिस वे. कम से कम हाथों को भगवान कृष्ण का मंदिर का मार्जन करने के लिए, ऐसे अलग अलग इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगानी है. देन यू कैन बी फ्रीड फ्रॉम लस्ट. ग्रेजुअली माइंड विल बी फ्रीड फ्रॉम ग्रॉस लस्ट. ओके, ग्रेजुअली ये होगा. सो मध्वाचार्य इज सेइंग दैट द लीस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय काम लाइक स्मोक कवरिंग फायर आर द नोबल एंड राइशियस बीइंग्स. The next more influenced by karma like dust covering a mirror are those of mixed natures, sometimes aware of their actions and sometimes not. And the most influenced by karma like an embryo imprisoned in the womb are the demoniac who are great evil doers. तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण. जो सात्विक व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति है, तो इसके लिए पहला उदाहरण जाएगा अग्नि और धुआं का. और दूसरा जो व्यक्ति है जो मिक्स्ड है, कभी पाप करता है, कभी पुण्य करता है, कभी आसक्ति में रहता है, कभी ऐसा रजोगुणी व्यक्ति है, जो व्यक्ति है ऐसे व्यक्ति का उदाहरण जाएगा दर्पण और धूल. और तीसरा जो है व्यक्ति तमोगुणी है, जो पाप में ही जीवन व्यतीत करता है, असुरी प्रवृत्ति का है, ऐसे व्यक्ति का जाता है गर्भ और शिशु का उदाहरण. सो लाइक अग्नि और फायर, काम इज ऑल्सो ऑल डिवोरिंग. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अनलेन और फायर. Therefore, kama residing in the senses, it can be restrained and destroyed only by the weapon of Vedic wisdom. Okay, वैदिक शास्त्र के निर्देशों से व्यक्ति इंद्रियों को दमन कर सकता है. जो काम इंद्रियों में है उसका दमन कर सकता है, जान के, शास्त्रों के निर्देश को जान के. काम envelops the mind and intellect prior to Atma Tattva or soul realization. But even after Atma Tattva is achieved, it has been seen that Kama is so powerful that it is able to exert its influence, as Kama is never satiated, and thus vigilance is still required before moksha or complete release from the material existence has been attained. मरते दम तक व्यक्ति को विजिलेंट रहना पड़ेगा, व्यक्ति को अलर्ट रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा. इसे साधु सावधान कहते हैं कि मरते दम तक व्यक्ति को इस काम शत्रु से बच के रहना चाहिए. व्यक्ति को बहुत अलर्ट रहना चाहिए. तो भले ही व्यक्ति को ज्ञान क्यों ना प्राप्त हो जाए शास्त्रों का, फिर भी व्यक्ति को ये काम जो भावना ग्रस्त कर सकती है, इसके वजह से व्यक्ति को साधु संग में रहना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, समय को व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहिए. Keshav Kashmiri is saying that one must withdraw the senses away from the sense objects at the very beginning before they have contact and remain resolute with a steady mind. विषय वस्तु के संपर्क में आने से पहले ही इंद्रियों को पीछे करना है. Okay, it's very difficult when you have contact with the sense objects and then you want to control senses. तो कॉन्टैक्ट आने से पहले ही व्यक्ति को क्या करना है? कुर्मो अंगनिव सर्वश. जिस प्रकार भयावह सिचुएशन उत्पन्न होने के बाद कछुआ जो होता है अपने इंद्रियों को ढक लेता है, समेट लेता है, उसी प्रकार जैसे ही भयावह स्थिति निर्माण होती है उससे पहले ही व्यक्ति को इंद्रियों को समेट लेना चाहिए. नॉट व्हेन इट कम इन कॉन्टैक्ट. ऑब्वियसली जब कॉन्टैक्ट में आते तभी भी कर लेना चाहिए, बट तभी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. ओके, जैसे मान लीजिए वन हु इज एडिक्टेड टू पोर्नोग्राफी. Now by watching pornography he is going to control it. It's not possible, okay? By clicking on pornography websites or videos and then he want to control, it's very difficult for him. But not
better not to watch only, better not to click the website, better not to use the स्मार्टफोन इन वेन. जब काम नहीं है तो ज़रूरत नहीं है तो क्यों यूज़ करना है. तो ये ज़्यादा ईजी है रादर दैन कंट्रोलिंग वाइल वॉचिंग इट. सो सेंसेस को जब सेंस ऑब्जेक्ट्स के कांटेक्ट में आते हैं उससे पहले ही व्यक्ति को इंद्रियों को समेट लेना है. दैट इज अ सोल्यूशन इट इज गिविंग. सो लॉर्ड कृष्णा इज गिविंग वेरी प्रैक्टिकल सोल्यूशंस टू कंट्रोल लस्ट. फर्स्ट यू कंट्रोल द सेंसेस ऑन ग्रॉस लेवल. पहले तुम इंद्रियों को समेट लेना सीखो, पहले इंद्रियों को भगवान की सेवा में एंगेज करना सीखो. दैट इज द सोल्यूशन कृष्ण वांट्स टू गिव. So here we have completed 41st verse. The two more verses are remaining. We will complete in the next session.